Okay, now today in this class we will discuss about the important aspects of the hypothesis testing. So before going to the hypothesis testing, let us first understand what do we mean by hypothesis, what is its importance in case of a research. Then how will you test the hypothesis, we will go for that. So before going to the detail of the hypothesis testing, let us understand what do we mean by a hypothesis. So if you see my slides, hypothesis is basically a statement or a proposition or a claim or anything else that we give based upon a population parameter. Come to our sampling concept. When I have told in my last class that the sample is a bigger thing, and from the sample we have to draw. Sorry, population is a bigger thing, and from the population we have to draw the sample. So sample is a small thing Yes, which can calculate, which you can know. But in our population, we do not have a control, which is a basically bigger thing. So when we make a hypothesis, what is a hypothesis? If I told you what is a hypothesis, so hypothesis is a preliminary statement that we prepare simply a before statement. any research. Remember, simply a statement. For example, the same example I can tell about the Doladali village, the same example I have given to you. Let us say I can draw a statement of the population. Let us say I can say that the people, the income of the Doladali village of the every family is 5,000 per month. This is simply basically a statement that I have given on the population parameter. So remember, the hypothesis is always made on the population parameter. Is it clear? Point number one. Hypothesis always we give on the population parameter. Is it clear? Yes, Now, once we make the hypothesis on the population parameter, then how can you prove these things? We have to draw the sample. And we prove and we try to prove by the help of the sample. So, so, सैंपल ड्रॉ करने का पहले आपको हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन करना पड़ेगा। अगर एक बार आपने सैंपल ड्रॉ कर दिया और उसके बाद हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन करते हैं तो फिर गलत हो जाएगा। जैसे मैंने कि हम कल जो बताया था आपको, जो अगर हमको 200 सैंपल साइज ड्रॉ करना है दलादली विलेज से, तो इसका पहले हमको हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन करना पड़ेगा। मान लीजिए मेरा रिसर्च से मेरे को लगा है कि दलादली विलेज में इनकम इज every household income is 5,000. So this is basically a hypothesis. So my dear students, hypothesis is nothing but a statement. It is a claim. It is a proposition. It is something which you are telling about the population parameter. Is it clear? yes, sir. Okay. Now to prove this hypothesis, we have to draw the sample. Then we have to test. Is it clear now? Yes, sir. Everybody is clear? Now, Yes, coming to the sir. next slide, how to test the hypothesis. So, to test the hypothesis, certain things we have to follow. Look to my slide. There are certain steps we have to follow to prove the hypothesis. Number one is we have to formulate the hypothesis. Formulation of hypothesis required. What type of hypothesis? How will you formulate? I will discuss. Second step is that we have to select a test to be used, because there are many tests are available. But for our own hypothesis, for our own population, what type of test we will apply, that we have to see. Then we have to select a significance level. What is significance level? I will tell you. Don't worry. Then we have to calculate the standard error of the sample statistics. We have to calculate. How will you calculate it? How will you denote? I will tell you. Don't worry. Then after Yes, sir. that, we have to determine the difference or maybe the any opportunity that is there. Then we have to compare with our original value. Then we'll take a decision. So these are some of the steps that is available to test a hypothesis. Now, instead of wasting our time on this particular theory, let us go to example, then you can understand. Am I clear? Yes, sir. It will be very nice if you go to example, then you can understand. Now, come to the slide. I am showing the slide. Please write down this question, everybody. Practical problem number one. Please write down the question. थोड़ा अपना कॉपी में उसको लिख लीजिए, जल्दी थोड़ा करिए, so that we can go for this application of hypothesis. How the hypothesis is tested and what are the things we have to do.
सब लोग लिख लीजिए, थोड़ा जल्दी करिए। आर यू राइटिंग गाइस? तो शुड आई लॉक? अभी 10 मिनट हो गया, कोई आने वाला है क्या? सर और तो कोई नहीं लग रहा सर। ठीक है, ठीक है। If somebody is interested, let he call, then I can unlock from my side. Okay? ओके सर। So write the problem. लिखा है? Or you can take the photographs, तो नहीं ले पाएंगे because you people are using your own mobile. You write that one, so that it will be very nice. थोड़ा जल्दी करिए। Yes, I think those are able to take the photograph is fine. Those are not able to take the photograph, you can write. Is it okay? Have you finished? Go fast, guys. So we will have to complete. Otherwise, you cannot understand. If I don't give the example, and then you cannot understand. Ansika has not joined today. What happened to her? She has not joined. डोंट नो सर। प्रशांत लिख रहे तुम? प्रशांत? यस सर, लिख रहा हूँ। हाँ लिख, जल्दी लिखो बाबू, जल्दी लिखो, आगे बढ़ाएंगे हम लोग। ओके 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 सर। ठीक है? Those are able to take the photographs, you can also take. I'll share the PPT if you require. I will share the PPT. Don't worry. ठीक है? हो गया आयुष? Ayush, have you written that thing? Prakash? फोटो ले लिया है सर मैंने। हो गया। प्रकाश आपका ये म्यूट कर लो, मोबाइल और पीसी जो भी है म्यूट कर लो। यस सर। ठीक है, थोड़ा वॉइस ठीक रहेगा। इफ यू आर डोंट ओपन द वीडियो। चलो ठीक है, हो गया। यस सर। Okay, चलो ठीक है। You read the problems. What is the problem is saying? A manufacturer supplies the rear axle for a US postal service mail trucks. तो आप जानते हैं ट्रक में एक्सेल लगता है, आगे लगता है, पीछे लगता है। सो रियर एक्सेल, तो रियर एक्सेल वो ट्रक में लगना चाहिए और मैन्युफैक्चरर बनाता है। सो द मैन्युफैक्चरर इज सप्लाइंग द रियर एक्सेल टू ए ट्रक्स। सो द ट्रक्स यूज टू particular rear axle in their vehicle. These axle must be able to withstand 80,000 pounds per square inch. This problem I have given through the foreign units. Don't worry. So axle कितना withstand कर पाएगा, कितना पाउंड कर पाएगा, withstand कर पाएगा? 80,000। तो ये है 80,000 पर स्टैंडर्ड स्क्वायर इसका। इंच। ये हाँ, ये एक्सेल 80,000 का पाउंड्स का और वेट का वो कर पाएगा। तो ये स्टैंडर्ड है, मतलब कि एवरीबॉडी हैज अ स्टैंडर्ड। फॉर एग्जांपल आई कैन टेक 4 चपाती, यू कैन टेक 5 चपाती, ये स्टैंडर्ड है। लेकिन कोई मान लीजिए फेस्टिवल होता है, कोई एक्सेप्शनल केस होता है, इन केस ऑफ डिजीज आइदर इट में इंक्रीज और इट कैन बी डिक्रीज, बट स्टैंडर्ड इज नॉर्मली यू कैन से दैट आई कैन टेक 5 चपाती पर डे।
Similarly, for Excel, it can withstand 80,000 weight or pounds per square inch in the stress test. अगर कोई टेस्ट होता है वो स्टैंडर्ड में ले पाएगा. Standard, the word standard is having importance. Clear? Now, but an excessively strong Excel raises production cost significantly. अगर हम ज्यादा उसको करा देते हैं हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा. बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अगर 80,000 बनाने के लिए हमको अगर 5,000 रुपया खर्च होगा, उसको अगर 80,000 की जगह पर हम 85,000 बना लेते हैं तो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा. हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं मेरे साथ? Yes, sir. ठीक है, प्लीज पार्टिसिपेट, डोंट स्टे, प्लीज पार्टिसिपेट. ठीक है, डोंट स्टे साइलेंट. गलत हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पार्टिसिपेट करो. ठीक है. लॉन्ग एक्सपीरियंस इंडिकेट्स दैट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द एक्सेल इज 4,000 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच. तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक्सेल का कितना है? 4,000 pounds per square inch. स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करते हैं हम लोग, याद है आपको स्टैटिस्टिक्स के पढ़ा. स्टैंडर्ड डेविएशन को क्या नोट करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं? सैंपल साइज को वी डिनोट एन. स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे डिनोट करते हैं? सिग्मा. And स्टैंडर्ड डेविएशन को हम डिनोट करते हैं सिग्मा. आई विल टेल यू, आई विल शो यू. सो अभी स्टैंडर्ड डेविएशन उनका इतना है 4,000. नाउ द मैन्युफैक्चरर सिलेक्ट अ सैंपल ऑफ 100 एक्सेल. तो व्हाट इज द सैंपल साइज? 100 Excel. 100. That means sample size is n is equal to 100 here. And test them and find them. The mean stress capacity of this sample is 79,600 pounds. तो सैंपल का जो मीन है वो कितना है? 79,600. लेकिन पॉपुलेशन का जो हम लोग देखा है विथ स्टैंड करने हैं जो स्ट्रेस टेस्ट में वो है 80,000 पाउंड्स. समझ में आ रहा है अभी? Yes, sir. क्लियर. जहां पे गलत लगेगा, जहां पे आपको डाउट लगे वहीं पे रोक लीजिए. इफ द एक्सेल मैन्युफैक्चरर यूजेस ए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ 5% इन द टेस्टिंग, विल द एक्सेल मीट हिज स्ट्रेस रिक्वायरमेंट. इस प्रॉब्लम को हम समाधान करेंगे, उसको सोल्यूशन करेंगे बाय अप्लाइंग द हाइपोथेसिस टेस्ट. इज इट क्लियर? नाउ आफ्टर दिस Yes, sir. प्रॉब्लम we write, then go to the next slide and see the symbols. So what it is giving? These are the some of the symbols we will use in case of hypothesis testing. अगर मीन है, पॉपुलेशन का मीन है, उसको डिनोट करेंगे म्यू. नोट कर लीजिए. आई विल शेयर द पीपीटी, डोंट वरी. ठीक है. अगर सैंपल मीन है उसको डिनोट करेंगे एक्स बार. प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल इन ए क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट 20% प्रोपोर्शन जहां पे आता है वी कैन डिनोट बाय साई, वी कैन डिनोट बाय पी. Similarly, variance sigma square. In case of sample, it is S square. Standard deviation in case of population, it is sigma, and in case of sample, it is S. Size of in case of population is capital N. In case of sample size is small n. Already we have told. Sample size already we have discussed. Standard error of the mean. In case of population, we denote by sigma x. In case of sample, we denote by Sx. Standard error of the proportion. In case of population, we denote by sigma p. In case of sample, we denote by sp. Is it clear? मैं I will explain. Don't worry. Now अभी आप थोड़ा concept ले लीजिए, फिर हम बता देते हैं आपको. Clear है? Yes, sir. Clear. ये Yes, sir. सिंबल यूज करेंगे हम लोग. तो बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल क्या है? सिग्मा. सैंपल साइज का सिंबल क्या है? स्मॉल n. ठीक है. And Small. standard error of the population is sigma x. Sigma p Sigma and x. Is it clear now? population is And population का मीन है म्यू. ये चार जो है हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूज करेंगे इन हाइपोथेसिस. दैट्स व्हाई आई हैव गिवन यू द सिंबल टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट यू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड द सिंबल ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. इज इट क्लियर नाउ? क्लियर? yes, sir. Clear. ठीक है. आई एम गोइंग स्लो. जिसको प्रॉब्लम हो रहा है वहीं पे बताओ मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है. स्टॉप मी एट दैट मोमेंट. ना प्रॉब्लम में क्या दिया है? लेट अस सी दिस प्रॉब्लम. प्रॉब्लम में क्या दिया है? एक्स बार सैंपल रो मीन दिया है. प्रॉब्लम में क्या दिया है? व्हाट इज देयर इन प्रॉब्लम? सैंपल मीन दिया है. व्हाट इज द सैंपल साइज? 79. हाँ, तो सैंपल मीन क्या है? 79,600.
79,600. Now you got these things. N is how much? N is 100. It is clear? Everybody is Yes, sir. clear? Now, level of significance we denoted by a symbol known as alpha. So, alpha is equal to 5% level of significance means how much? 0.05. 5 divided by 100. That will be 0.05. So, alpha is equal to 0.05. Is it clear? सर अल्फा 0.05 कैसे है और एक बार बताइए 5% है ना 5% मतलब क्या है 5/100 यस सर 5/100 0.05 कितना now got होगा it 0.05 got it ठीक है नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन सिग्मा इज इक्वल टू 4000 सी आई एम मूविंग माय कर्सर इज 4000 इज क्लियर यस सर नाउ द फर्स्ट स्टेप हम लोग का हाइपोथेसिस टेस्टिंग में फर्स्ट स्टेप इज दैट फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस हमको हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना पड़ेगा फर्स्ट स्टेप इज दैट इज इट क्लियर नाउ फर्स्ट स्टेप क्या है वी हैव टू फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस one is called null hypothesis another is called alternate hypothesis I'll go to the first slide yes one is called null hypothesis another is called alternate hypothesis there are two types of hypothesis so you have to formulate the hypothesis null hypothesis is denoted by h small 0 alternate hypothesis denoted by capital H hyphen 1 capital H1 H0 H1 is it clear now everybody सर एक बार फिर से हाँ Yes, एक बार फिर से ठीक है कोई बात नहीं null hypothesis we denoted by H0 यहाँ पे देखिए नीचे है H0 नीचे है देखिए वन टेल टेस्ट का नीचे जो Yes, सिंबल दिया है H0 everybody is able Yes, to sir. see यहाँ पे देखिए स्लाइड में देखिए नीचे यस प्रकाश सर देखिए इधर है यस सर अरे बोलो ना यस सर नो सर तो बोलो ना चुप रहने से क्या होगा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में H0 दिखाई दे रहा है सिंबल H0 यस सर दिख यस रहा सर अच्छा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस वी गिव ए सिंबल H1 इस तरीका से हम नॉन हाइपोथेसिस को सिंबलाइज करते हैं H0 अल्टरनेट हाइपोथेसिस को सिंबलाइज करता है H1 ठीक है नाउ व्हाट इज null hypothesis what is alternate hypothesis let us understand null hypothesis is nothing but null hypothesis is nothing but the status quo और ऐसे जो स्टेज में है उसी स्टेज में हम से डिराइव करते हैं ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई से इफ द ये जो एग्जांपल में है एक्सेल का जो स्टैंडर्ड टेस्ट कितना जो हम करेंगे तो null hypothesis स्टैंडर्ड कितना है इस टेस्ट इस एग्जांपल में जो हम कर रहे हैं एक्सेल का स्टैंडर्ड स्ट्रेस कितना है सर 8000 8000 so this is H0 is equal to 8000 is it clear now यस सर null hypothesis is saying that always we will go for the standard or the status quo जो है हम उसको रखेंगे we will not change ठीक है सो और में भी देयर इज नो डिफरेंस देयर इज नो इफेक्ट कोई भी चीज अगर नो डिफरेंस नो इफेक्ट स्टेटस क्यू ऐसा सिचुएशन में आता है दिस वी टेल एज ए null hypothesis if the null hypothesis is not rejected no changes will be made so इस क्वेश्चन में हमारा null hypothesis क्या होगा H0 is equal to 8000 is it clear is it clear इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है बताओ तो फिर किसको प्रॉब्लम हो रहा है हेलो हेलो क्लियर सर क्लियर और किसको प्रॉब्लम किसको हो रहा है क्लियर है ठीक है नाउ अगर अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है अगर H0 इज इक्वल टू 80,000 अल्टरनेट क्या होगा नॉट इक्वल टू हो सकता है ये भी एक अल्टरनेट सिचुएशन है लेस देन भी 80,000 वो भी हो सकता है
ग्रेटर देन 80,000 हो सकता है। इसका मतलब अल्टरनेट हाइपोथेसिस 3 तरीका से हो सकता है। एम आई क्लियर? यस सर। एक तो नॉट इक्वल टू हो सकता है, दूसरा तो लेस देन हो सकता है, तीसरा ग्रेटर देन हो सकता है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम है अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा इज नॉट इक्वल टू 80,000। व्हाई इट विल हैपन आई विल टेल यू। अभी आप रोकिए मत, ठीक है? इज इट क्लियर नाउ? यस सर। So I repeat again, the null hypothesis is basically the standard or the status quo, or where there is a concept of no change or no difference. To prove or the null hypothesis, we have to take a alternate hypothesis where we can come 3 alternate situation. One situation it is not equal to, another situation it is less than that, another situation it is greater than that. So there are 3 possible alternate situation can happen, but in this example we will take not equal to. Why we will take, I'll describe you later on. I'll describe you little bit. Now are you able to understand what is null सर अगर नॉट hypothesis, what इक्वल is टू alternate होगा hypothesis? तो ऑलरेडी या तो लेस देन होगा या तो ग्रेटर देन होगा ही। कौन सा? सर आप बोले ना कि एक नॉट इक्वल टू होता है, एक लेस देन होता है, एक ग्रेटर देन होता है। सर अगर नॉट पॉसिबल इक्वल टू हो हुआ सकता है, तो 3 या पॉसिबल तो हो लेस देन सकता होगा है। या तो ग्रेटर देन होगा। हाँ बोलो बोलो। सर वही बोल रहे कि अगर नॉट इक्वल टू हुआ तो या तो लेस देन होगा या तो ग्रेटर देन होगा ही। नहीं 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 नहीं, तीनों पॉसिबल है। आइदर इट इज नॉट इक्वल टू 80,000, either it is less than 80,000 or is equal to greater than 80,000. Is it clear? यस तीनों पॉसिबल हो सकता नहीं, अल्टरनेट हाइपोथेसिस तीनों हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो तो सकता है। हो सकता है। नाउ इस एग्जाम्पल में, इस प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, अगर हम 80,000 से ज्यादा टेस्ट करेंगे तो हमारा खर्चा ज्यादा होगा, है कि नहीं? इज इट क्लियर? Yes, sir. नहीं, आप लोग समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को लगता है आप लोग समझ नहीं रहा है। पूरा साइलेंट है क्लास। इस प्रॉब्लम में क्या कर रहा है, प्रॉब्लम को पढ़े को नहीं पढ़े हो? प्रॉब्लम को पढ़ो एक बार, क्या बोल रहा है, पढ़ो, आवाज देके पढ़ो, मेरे को पढ़ो। अंकित पढ़ो। A manufacturer supplies the for a service mail trucks. हाँ, The axle must be able to withstand 80,000 pounds per square inch in सो stress test. म्यू इज इक्वल टू 80,000। हमारा जो स्टैंडर्ड है 80,000, ठीक है? इज इट क्लियर? स्टैंडर्ड सिचुएशन स्ट्रेस टेस्ट में एक्सेल का स्टैंडर्ड 80,000 पाउंड का वेट ले सकता है और स्ट्रेस ले सकता है। इज इट क्लियर? दिस इज द स्टैंडर्ड सिचुएशन। सो म्यू इज इक्वल टू 80,000 इज स्टैंडर्ड सिचुएशन। इट इज क्लियर नाउ? Yes, sir. Yes, sir. So नेक्स्ट सेंटेंस, स्टैंडर्ड सिचुएशन क्या लिखेंगे? म्यू स्टैंडर्ड सिचुएशन में क्या लगेंगे? और नॉल हाइपोथेसिस, नॉल हाइपोथेसिस डिनोट्स द स्टैंडर्ड सिचुएशन। सो हम कैसे लिखेंगे? Yes. I am just scrolling the next slide. One second. See, H0, you see H0 is equal to, third sentence, H0 is equal to, mu is equal to 80,000. H1, which is an alternate hypothesis, which is equal to, mu is not equal to 80,000. Is it clear now? Yes. Clear? हम नॉट इक्वल टू लिख दिया है, आप लोग सिंबल के हिसाब से भी लिख सकता है, नो प्रॉब्लम। सो यू कैन राइट नॉट इक्वल टू 80,000, यू कैन राइट ऑल्सो। क्लियर? नाउ Yes, sir. now here we cannot take less than 80,000, or where we cannot take greater than 80,000. Why? If we are taking greater than 80,000, then our cost of production will increase. Am I right? So this is loss to the company. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. If you are taking less than 80,000 stress, then what will happen? The axle will break, the truck will lose, and the truck will face the accident. Is it clear? Let us say Yes. there are 2 possible situations. One situation, if we are taking greater than 80,000, what will happen? Our cost of production or cost of manufacturing of an axle will increase. If you are taking less than 80,000, there is a chances that the axle may break and the truck may face accident.
सो लेस देन एंड ग्रेटर देन सिचुएशन हम लोग इस केस में टेस्ट नहीं कर पाएगा। हम इस केस में ओनली 80,000 हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। दैट मीन्स इक्वल टू 80,000 और नॉट इक्वल टू 80,000। सो हियर द null hypothesis is equal to 80,000. The alternate hypothesis will be equal to not 80,000. Is it clear now? Clear or not? Yes, sir. इसलिए Yes, sir. हम इसमें लेस देन और ग्रेटर देन नहीं ले पाएंगे। क्लियर? सो हियर वी हैव नाउ फॉर्म द null hypothesis, that is H0 and H1 we have formed. So this is the step 1. Step 2 क्या करना है? In the step 2 what we have to do, we have to apply the level of significance. Level of significance क्या होता है? It is the risk, write down, it is the risk by which level of significance is the risk, I have written in the slide, it is the risk by which the researcher can test the hypothesis. इसका मतलब क्या है? What does it mean? रिसर्चर 5% रिस्क ले सकता है। इज इट क्लियर? क्योंकि रिसर्चर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% रिस्क ले सकता है। इफ यू टेक ए हाई रिस्क देन क्या होगा? आपका जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का रिस्क ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब आपका फॉल्स हो जाएगा टेस्टिंग। सो जितने कम रिस्क आप लेते हैं, यू आर ट्राइंग टू मिनिमाइज द रिस्क। सो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो हम टेस्ट करते हैं, जितना कम लेते हैं, 5%, 3%, 2%, 1%, ऐसे हम लोग के लिए अच्छा है। But if you are taking more than 5%, that means we are taking more risk, which is not good for a manufacturing or any other hypothesis testing. It is the risk I can take, because where there is a risk, because there might be risk, I do not know, maybe manufacturing में हो सकता है, population sampling में हो सकता है, mean में हो सकता है, there might be risk. So level of significance is the risk the researcher has to check. That is 5% is the risk. If 5% is the risk, then what is the level of acceptance? 95%. Is it clear? Yes, Is it sir. clear? So yes, sir, 95. Yes, अगर हम yes. 5% रिस्क लेते हैं, मतलब हम कोई भी चीज को एक्सेप्ट करता है विद 5% रिस्क, लेकिन तो हमारा जो एक्सेप्टेंस रीजन क्या होगा? 95%. इज इट क्लियर? Yes. If Yes. our level of significance is 1%, then our level of acceptance is 99%. 99%. If your level of significance is 10%, So how will we define the, sir, level of significance? normally in a research, there are a lot of research is going on, but for you at this moment, 5% is a standard form of taking a level of significance. You can Is it take, already mentioned? हाँ बोलो, Sir, बोलो. level of significance. Sir, level of significance that you have taken is 5%. Is it already mentioned in the question? हाँ, normally in almost all this hypothesis testing we take 5%, which is a standard form. If we take above 5% Okay, to 10%, we can go for up to 10%. So 10% to 1% is the variation. 1% to 10% is the variation. So 5% is the medium level. So normally in the hypothesis testing, we take 5% as the level of significance. We can take more than 5%, but the result will not give a good result. The result may not be a best result. सो हम लोग क्या करते हैं? 5% लेते हैं स्टैंडर्डाइज फॉर्म में, नहीं तो 5% का नीचे लेते हैं, 4%, 3%, 2%, 1% लेते हैं। सो 1% से 10% हम ले सकते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। मोस्ट प्रोमिनेंट, मोस्ट स्टैंडर्ड इज द 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इज इट क्लियर नाउ? क्लियर? Yes, Clear, sir. sir, clear. Clear. So alpha is equal to 0.05%. Is it clear? Now the second step is that calculate the standard error of the mean sigma x. Sir, हाँ बोलो. sir, हाँ बोलो. sir, sir, how will we calculate the sample mean, sir? सैंपल मीन ऑलरेडी दिया है, आपको कैलकुलेट करने का जरूर नहीं है। सैंपल मीन कितना Already दिया है? question mentioned.
हाँ सर, वो तो ऑलरेडी मेंशन है। बस ऑलरेडी Yes, मेंशन है, आपको कैलकुलेट कर, सैंपल में कितना है 79,600 ऑलरेडी दिया है, ठीक है, आपको Yes, sir, कैलकुलेट वो करने already का जरूर नहीं है। Is it clear now? So Yes, second sir. step is that calculate the sigma x, that is standard error of the mean. Sigma x is known as the standard error of the mean. This can be calculated by sigma divided by n rho square root. Write down. इस already मेरा slide में है, देखिए sigma divided by n rho square root. Sigma divided by n rho square root. तो sigma कितना है यहाँ पे? Sigma divided by n rho square root. n rho. n क्या है? सैंपल साइज Yes, sir. n रो स्क्वायर रूट, तो कितना होगा? सिग्मा कितना है? 79 नहीं नहीं, 4000. सिग्मा कितना है? 4000. 4000. सिग्मा कितना है? पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज इक्वल टू 4000 डिवाइडेड 4000. बाय n. n कितना है? Sir, in every how 100. numerical, 100. first of all, we have to calculate standard error. हाँ, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन. वी आर नाउ कैलकुलेटिंग द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन व्हिच इज डिनोटेड बाय सिग्मा x. सिग्मा x कैन बी कैलकुलेटेड बाय सिग्मा डिवाइडेड बाय n रो स्क्वायर रूट. सिग्मा यहाँ पे कितना है? 4000 which is already given in the question divided by n कितना है? 100. 100 रो स्क्वायर रूट. कैलकुलेट करो कितना आता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन? 400. 400. 400. वेरी गुड. कितना आता है? 400. इज इट क्लियर नाउ? कितना आता है? 400. 400 आ गया. एवरीबॉडी गॉट 400? Yes, sir. Clear? Everybody got? Now this is a, now we have to see that after we got this standard error of the mean, then we have to see that which type of test it can take. Which type of test it can take. Clear? So what will happen that if you go to this diagram, you can understand. I am just showing a diagram. यहाँ पे सब देख रहा है डायग्राम में? ये डायग्राम आपको देख पा रहा है सभी लोग? डायग्राम को Yes, sir. सभी लोग देख पा रहा है? Yes, sir. What is the diagram? What is the diagram is telling? This is called a bell-shaped curve. Bell-shaped curve. Any distribution in the sampling जब हम distribute करते हैं वो bell-shaped curve लेता है. So any distribution follows a bell-shaped curve is assumed as a normal distribution. क्योंकि जितना भी हाइपोथेसिस हम टेस्टिंग करेंगे सबको we will assume, give the importance word assume that it is in normal distribution. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो कर्व होते हैं वो बेल शेप्ड कर्व होते हैं एंड द साइज ऑफ द बेल शेप्ड कर्व ऑलरेडी आई हैव गिवन इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड. इफ यू सी दिस कर्व, देखिए बीच में है म्यू, बीच में है म्यू. इज इट क्लियर? Yes, अरे sir. हाँ कि नहीं? Yes, sir. हाँ, नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है तुम लोग का. आज बहुत लेथार्जी हो तुम लोग. इसमें म्यू है कि बीच में नहीं? म्यू कहाँ है? ये हाँ, जो Yes, sir. म्यू नीचे लिखा है कि नहीं? म्यू आप लोग देख पा रहे हैं कि नहीं मेरा म्यू? Yes, sir. Mu? At the center. एट द सेंटर क्या लिखा है? Mu. म्यू लिखा है कि नहीं लिखा है? Yes, sir. Yes, तो sir. हमारा ये प्रॉब्लम में म्यू कितना है? Problem में mu है 4000. नहीं, 4000 म्यू नहीं है. नहीं, sorry, 80,000. sorry. म्यू कितना है? 80,000. 80,000. 80,000 इज आवर म्यू. ठीक है, ये अगर 80,000 हमारा म्यू है तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है? 5%. 5%. तो इसमें क्या होगा? 80,000 होगा, नहीं तो होगा, उसमें कोई सवाल ही नहीं है. दो सवाल आ सकता है, इधर 80,000 होगा नहीं तो 80,000 नहीं होगा. सो इट इज कॉल्ड टू टेल सिचुएशन. आइदर होगा नहीं होगा. देयर इज नो लेस देन और ग्रेटर टू सिचुएशन. इफ देयर इज लेस देन और ग्रेटर टू सिचुएशन, द सिचुएशन कुड हैव बीन डिफरेंट. So here it is either 80,000 or it is not equal to 80,000. In this situation, it is called a two-tail test.
इसलिए हम दो जगह पर दो तरीका से और दो साइड में टेस्ट करेंगे। जैसा आप अगर लेफ्ट साइड में देखेंगे, देखिए एक गार खींचा है थोड़ा मतलब कि इसमें देखिए राइट एंड लेफ्ट में दोनों साइड में लिखा है लिमिट का गार टना है, और उसमें देखिए ये है दो साइड में हम लोग टेस्ट करता है। इट इज कॉल्ड टू टेल टेस्ट। व्हाई इट इज कॉल्ड टू टेल? आइदर इट इज 80,000 होगा, नहीं तो 80,000 नहीं होगा, जो दोनों का बीच में होगा, और कोई लेस देन ग्रेटर देन का सिचुएशन नहीं है इस केस में। सो इसीलिए दिस टाइप ऑफ टेस्ट वी नोन एज टू टेल टेस्ट। हियर वी आर गोइंग फॉर आइदर yes और no, टू टेल टेस्ट। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। अच्छा, टू टेल टेस्ट में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है जल्दी बताओ बाबू। 5%. 5% दोनों साइड में डिवाइड हो जाएगा। अगर दोनों साइड में डिवाइड होगा ये हो जाएगा 0.0525, इसमें हो जाएगा 0.025। इज इट क्लियर? यस Yes, sir. ओके, नाउ वंस यू गेट, तो अगर ये 5% चला था, एक्सेप्टेंस रीजन कितना है? मेरा हाथ को देखिए, एक्सेप्टेंस रीजन कितना है? कितना एक्सेप्टेंस रीजन? 95%. 95 को डिवाइड कर लीजिए, एक्सेप्टेंस रीजन कितना होगा? 0.475, 0.475। Am I right? Yes, sir. यस सर। डिवाइड हो गया दोनों को, कहीं इक्वल है, सिमेट्रिकल है, आई कैन डिवाइड। सो 0.475, 0.475। नाउ फ्रॉम द टेबल दिस डाटा विल बी गिवन टू यू, डोंट वरी, दिस डाटा विल बी गिवन, नो प्रॉब्लम। फ्रॉम द टेबल when the area is 0.475 and when the significance level is 0.25, we find the value of z is equal to 1.96. so जैसा हम लोग इंटीजर करते हैं ना, पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर, सो राइट साइड में होगा 1.96, लेफ्ट साइड में होगा -1.96। इज इट क्लियर नाउ? देखिए z is equal to 1.96 and z is equal to -1.96. What is z? This is a calculated z value जो हम टेबल से कैलकुलेट दे रहे हैं। आपको एग्जाम में अगर दिया जाएगा तो आपको z वैल्यू दिया जाएगा फ्रॉम द टेबल। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यस सर, क्लियर। So z value we got from the table when our area of acceptance is 0.475 and the level of significance 0.25। हम टेबल से ये z वैल्यू आपको देंगे, आपको कोई चिंता करने का जरूर नहीं, कोई दिमाग खटाने का जरूर नहीं है। सो z इट इज इक्वल टू 1.96 पॉजिटिव साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू -1.96, क्योंकि दोनों साइड में हम टेस्ट कर रहा है, बिकॉज इट इज ए टू टेल टेस्ट। इज इट क्लियर? नाउ हमारा z क्लियर, z मिल गया है। नाउ Yes. कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर, स्लाइड नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड स्टेप, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन z बाय फॉर्मूला देखिए, x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा x और सिग्मा बाई n रो स्क्वायर रूट। सिग्मा बाई n रो स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में जो है उसको सिग्मा x। इज इट क्लियर? सिग्मा एक्स, अरे बाबू सिग्मा एक्स पहले कैलकुलेट नहीं किया है क्या? स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट किया है कि नहीं किया? 400 निकला कि नहीं निकला है? हाँ सर। Yes, sir. सिग्मा एक्स जो है, जो डिनोमिनेटर में है वो है सिग्मा एक्स, न्यूमरेटर में क्या है? एक्स बार। एक्स बार का वैल्यू क्या है? लगाओ, एक्स बार का वैल्यू क्या है? एक्स बार का वैल्यू क्या है? 79. हाँ 79,600 माइनस म्यू क्या है? 80,000. डिवाइडेड बाई 400. कितना आया? जेड कितना आया? So 1. कितना आया? 1 आया ना -1? 1 -1 -1 ना, -1 जेड कितना Yes, आया? sir. -1 -1 गोट इट, -1 ठीक है। नाउ टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ जेड कितना मिला? 1.96। कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ जेड कितना मिला? -1 कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ जेड कितना मिला? -1 वेरी गुड। टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ जेड कितना मिला? -1 नहीं, टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ जेड, टेबल से जो मिला है जेड कितना मिला है? 1.96. 1.96 इज द टेबुलेटेड वैल्यू। कैलकुलेट करके हम लोग को मिला है कैलकुलेटेड वैल्यू इज द -1। तो -1 कहां पे रहेगा? म्यू और लेफ्ट साइड का जो जेड है उसका बीच में -1 रहेगा। एम आई राइट? Yes sir.
ये जो Yes, म्यू sir. है इसका और ये जो लेफ्ट साइड में जो Yes, sir. है लिमिट लिखा है उसका बीच में -1 रहेगा। इज इट क्लियर? जी सर, जी सर। हाँ सर, नेगेटिव उधर। हाँ, तो इसका बीच में रहेगा। इसका मतलब आवर कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ जेड इज इन आवर एक्सेप्टेंस रीजन। एम आई राइट? Yes, sir. नाउ इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. नहीं, ये सर नहीं, जोर से बोलो, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है। Yes, sir. हाँ, so calculated value of z is in our acceptance region. Since our calculated value is present in our accepted region, then we will accept the null hypothesis. अगर रिजेक्शन रीजन में था, ये था रिजेक्शन रीजन में, ये था 0.05 इज रिजेक्शन रीजन एंड दिस इज आवर एक्सेप्टेंस रीजन। ऊपर में लिखा है, देखिए गार में लिखा है एक्सेप्टेंस रीजन और ग्रीन में ये लिखा है रिजेक्शन रीजन, ये लिखा है रिजेक्शन रीजन। तो हमारा जो -1 है वो एक्सेप्टेंस रीजन में डाला पड़े है ना, रिजेक्शन रीजन में डाला है? सर acceptance तो एक्सेप्टेंस रीजन डाला है, मतलब वी विल एक्सेप्ट द नॉल हाइपोथेसिस बिकॉज एक्सेप्टेंस रीजन में है। Yes, sir. अगर हम नॉल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं तो क्या इन्फरेंस मिलेगा? सर मतलब सर कोई डिफरेंस तो नहीं रहेगा। मतलब अगर हमको एक्सेल बनाना है, सिर्फ 80,000 बनाना है, बस हम 80,000 ना हाँ। नहीं कर सकते हैं। सो हमको जो एक्सेल बनाएंगे उसका टेस्ट सिर्फ 80,000 होगा, ठीक है ना? वी कैन नॉट मेक द एक्सेल लेस देन 80,000, ग्रेटर देन 80,000, नॉट इक्वल टू 80,000, वो सब नहीं चलेगा। अगर 80,000 से कुछ भी उधर उधर हो जाएगा तो हमारा गड़बड़ हो जाएगा। तो दिस इज ए थिंग्स बाय व्हिच यू गो फॉर द हाइपोथेसिस टेस्टिंग। आपको अभी थोड़ा लगेगा, आप लोग जाके घर में पढ़िए। ये स्लाइड भी मैं आपको शेयर कर देता हूं आज, इसमें ऑलरेडी आई हैव गिवन, फिर भी आप लोग को कैसे दूं, स्वाध्याय में दे दूं? यस सर, दे दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? अभी आपको क्या प्रॉब्लम है बताए, अभी सब कुछ का क्या प्रॉब्लम? लेट मी आस्क द क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम अप टू दिस? कैसा हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता है? एनी क्वेश्चन अप टू दिस? सर जो लास्ट में आप बताए चार्ट वाला, वो चीज एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। कहां से एक्सप्लेन करो? इस चार्ट में हम लोग वी आर गोइंग फॉर टू टेल टेस्ट, ठीक है? व्हिच टाइप ऑफ टेस्ट वी आर गोइंग फॉर? टू टेल टेस्ट। क्यों टू टेल टेस्ट कर रहा है? आइदर इट इज 80,000 नॉर इट इज 80,000। सो हम टू टेल दोनों साइड में टेस्ट कर रहा है, भाई 80,000 होगा कि 80,000 नहीं होगा। सो इसलिए वी आर गोइंग फॉर ए टू टेल टेस्ट। अगर हम टू टेल टेस्ट में टेस्ट कर रहा है, देन इफ आवर एक्सेप्ट रिजेक्शन रीजन इज 5%, देन विल डिवाइड, दोनों साइड डिवाइड हो जाएगा। सो ईच साइड विल बी 0.025, दिस साइड विल बी 0.2, एंड दिस इज आवर रिजेक्शन रीजन, this is a rejection region, this is our rejection region. Is it clear now? Yes sir. Then if you have 5% in my rejection region, then what is my acceptance region? 95%. 95%, because this is symmetrical, I can divide this figure. So each 7 में क्या आएगा? 0.475, 0.475. Is it right? Yes sir. Now when the value of this area is 0.475, when our rejection region is 0.025, the tabulated value we will get is 1.96. This will be given to you in the examination. This is the tabulated value. It will be given in the examination. So tabulation value is how much? 1.96. Now it is clear now? The tabulated value will be given in the question. Yes, yes. Tabulated value will be given to you in the examination, because you are not having a such type of provision कि आप tabulated value नहीं देने से नहीं कर पाएंगे, तो आपको दिया जाएगा examination में, ठीक है? हाँ सर। ठीक है, got it? Okay, yes sir. Okay, I think Shweta madam has already there. Just मैं मैडम को एंट्री कर देता हूँ, फिर बात करते हैं, ठीक है? Yes sir, yes sir. Got it now? Any question up to this? नो सर, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा घर में, फिर से बस नेक्स्ट घर में थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। मेरा मोबाइल 24/7 खोला है, यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, आई कैन एक्सप्लेन यू, डोंट वरी। एनी क्वेश्चन? थोड़ा आपको प्रॉब्लमेटिक में थोड़ा दिक्कत होगा, बट ऑलरेडी टुडे मॉर्निंग आई हैव मेड दिस स्लाइड सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। अभी थोड़ा हाउ टू यूज ए सिंबल, और प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़िए। और एक थोड़ा प्रॉब्लम आप पढ़िए, मैं आपको स्लाइड शेयर करता हूं, आप पढ़ के बताएं इस प्रॉब्लम में क्या होगा। ये प्रॉब्लम को पढ़िए थोड़ा,
Very simple problem है. Adi, by the time Madam Sweta Madam, have you joined? Sir, I have also joined, sir. Okay. Just Good morning, ma'am. I'm winding that thing. Just 2 minutes, madam. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Take your time. So Good morning, आप ma'am. problem 2 को पढ़िए. Good morning. ठीक है? And I am just sharing the entire slides to you. And problem 3, I have given another problem. Practice problem 3. So problem 2 or problem 3, you go and take and read at your home, and you try to understand कि पहले which are go for a 2-tailed test, whether will go for a 1-tailed test. If 1-tailed test, whether it's a left-handed test, whether it's a right-handed test. So I'm just sharing these slides to you. I think madam is online. We should not take her classes too much. So you take this slide. I'll give the slides on Swadhyay or to your mail ID. किसका mail ID में भेज दूँ ना, Swadhyay में डाल दूँ. Already it is there in Swadhyay, but problem नहीं है. सर मेल कर हैं? सर व्हाट्सएप में डाल दें. व्हाट्सएप मुझे पता नहीं यार, हम ट्रेडिशनल आदमी, हम थोड़ी टेक्नोलॉजिकल ऐसे हैं. बूढ़ा आदमी आप मेरे को फिर व्हाट्सएप सर मेल कर दीजिएगा. हैं? मेल कर दीजिए. नो सर. नहीं तो मैं स्वाध्याय कर स्टूडेंट दिए. स्वाध्याय, ठीक है, कोई बात नहीं. टुडे आई एम पुटिंग इन दिस थिंग्स. आप थोड़ा जाके पढ़िए. कुछ भी प्रॉब्लम होने से यू कैन आस्क टू मी थ्रू मोबाइल, नॉट एन इशू. सो एनी क्वेश्चन आई विल लीव टू यू बिकॉज डॉक्टर श्वेता हैज जॉइंड नाउ. शी विल टेक हर क्लास. एनी क्वेश्चन गाइस? एक बार उसको समझ में आएगा ना हाइपोथेसिस टेस्टिंग सिंपल, तो फिर टी टेस्ट हो, जेड टेस्ट हो, एनोवा हो, कोरिलेशन हो, रिग्रेशन हो, कोई भी टेस्ट आप कर सकता है. एक कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाने के बाद यू कैन डू एनी टेस्ट. ठीक है? एनी क्वेश्चन? 1 minute is there. Any question? Please go ahead. क्वेश्चन तो सर कल आए. आज तो हाँ? नहीं था. तो क्वेश्चन तो कल अराइज होगा सर, आज कहाँ से? आज तो जाकर रिवाइज पढ़ते नहीं हो, तुमको पहले में बोला था पढ़ जा. ठीक है, कोई बात नहीं है. यू जस्ट रीड दैट वन. इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी प्लीज आस्क मी, आई विल हेल्प यू. ठीक है? थैंक यू वेरी मच. Yes. कल मेरा भी क्लास है एक ठो. थैंक यू सर. कल हाँ भी सर, कल क्लास है, last थर्ड class क्लास है. So I'll take the class and I will explain to you all these things. Plus, please let us have a look and go through these particular slides. I am sharing these slides through Swadhyay to you immediately just after this class. ठीक है? ठीक है? Okay. Thank you very much. Now I request madam to take the class. Madam, please go ahead. Maybe 1 or 2 minutes Yes, to sir. give to them because of refreshment. Then you can start, madam. Please, madam. Okay, sir. Okay. Yes, sir. I'm giving them 1 or 2 minutes if they can.